spoken word you are singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. And all the overwhelming, never-ending, reckless love of God, oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves a 99, and I couldn't earn it, I don't deserve it, still you gave yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of When I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. And all the overwhelming, never-ending, reckless love of God, oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves a 99, and I couldn't earn it, I don't deserve it, still you gave yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming
तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से क्योंकि तू है मेरे यादों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से क्योंकि तू है मेरे यादों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी ना छोड़ा तूने हाथ मेरा। फिर भी ना छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से क्योंकि तू है मेरे यादों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से क्योंकि तू है मेरे यादों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए तुमके अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए तुमके अलावा कुछ ना दिया। फिर भी ना छोड़ा तूने हाथ मेरा। फिर भी ना छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से क्योंकि तू है मेरे यादों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से क्योंकि तू है मेरे यादों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। Good morning, church. गुड मॉर्निंग कलीसिया। Welcome to the Sunday morning service. रविवार की सुबह की सभा में आपका स्वागत है। We thank you for joining us this morning. आप हमसे जुड़ रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। So before we start the announcement, और अनाउंसमेंट की शुरुआत करने से पहले I want to welcome those people who are watching us for the first time. और मैं उन लोगों का स्वागत करना चाहूँगा जो पहली बार आए हैं। Thank you for joining us. आप हमसे जुड़ रहे हैं, हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। Please write your name and contact number in the comment box आप अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं so that we can connect to you. ताकि हम आपसे जुड़ सकें।
And if you are watching us for the second time, अगर आप हमें दूसरी बार सुन रहे हैं, write your name and your address in the comment box आप अपना नाम और एड्रेस जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर so that we भेजिए, can send you some gifts. ताकि हम आपको कुछ भेंट भेज सके। Okay. So announcement is like this. और आज की सूचना इस प्रकार है। Bible college class will be as per the schedule. बाइबल कॉलेज की जो क्लासेस है वो शेड्यूल के अनुसार रहेंगे। Monday, Pastor Binu will be teaching, and Tuesday, Pastor Dharmesh. और सोमवार को पास्टर बीनू सिखाएंगे और मंगलवार को पास्टर धर्मेश सिखाएंगे। And every evening at 5:30 p.m. we have devotion time. और हर शाम को 5:30 बजे हर दिन हमारा डिवोशन समय होता है। So if you have not subscribed to our channel, so please subscribe today और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज आप कर सकते हैं, so that you can get the notification of all the videos. ताकि हम आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। And every Saturday we have men's time and ladies time. और हर शनिवार को पुरुषों का और महिलाओं का समय होता है। So details of that you will get on WhatsApp. और उसकी जो जानकारी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दिया जाएगा। Okay. So for offering I want to say one thing. और ऑफरिंग के लिए मैं एक सूचना देना चाहूँगा। You can find on the screen you can see the details of online offering. और इस स्क्रीन पे जो है आपको कुछ डिटेल दी जाएंगी जो कि ऑनलाइन ऑफरिंग देने के लिए है। But if you don't want to give online, अगर आप ऑनलाइन ऑफरिंग नहीं देना चाहते हैं, you can also give it in cash. आप कैश में भी दे सकते हैं। In the description box you will get the address of the church office. और ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको चर्च ऑफिस का एड्रेस दिया जाएगा। So you can come at Tuesday to Saturday. आप मंगलवार से लेकर शनिवार के बीच में कभी भी आ सकते हैं। Timing will be 12 to 6 p.m. और समय रहेगा 12 से 6 बजे। Okay. So if you have any prayer request, अगर आपकी कोई भी प्रार्थना का विषय है, you can contact us on the number displayed on the screen, आप उन नंबर जो आपको डिस्प्ले पे दिया जा रहा है उस पर संपर्क कर सकते or हैं, you can also write mail to us. या तो आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। Thank you for it. बहुत धन्यवाद आप सभी का। Let's pray for the offering. और साथ ही साथ अभी हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। Lord, we thank you, Lord, for this time, Lord. और पिता हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, Thank you, Lord, for bringing us together, Lord, और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक साथ इकट्ठा होने का मौका दिया है। through this online service, Lord. और इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा Lord, we pray, Lord, और हम प्रार्थना करते हैं you आज speak to us, Lord, through your word, Lord. आप हमसे बातें करना आपके वचन के द्वारा। And also pray for the offering, Lord. और साथ ही साथ इस भेंट के लिए हम प्रार्थना करते हैं, You bless each one of us, Lord, हर एक को आप आशीष देना, that we may give according to the purpose of our heart, Lord. और हमारे जो दिलों के जो मकसद है उसके अनुसार हम आपको दे सके। Thank you, Lord. धन्यवाद देते प्रभु, In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को करते हैं। Amen. आमीन। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र,
बस एक तू महिमा, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई यीशुआ, तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई यीशुआ। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। These are mighty men. और ये शूरवीर योद्धा थे। David could easily say, और दाऊद आसानी से कह सकता था, yes, go, जाओ करो, kill him, मार डालो, take off his head. उसका सिर काट दो। Or David can go alone and kill this man. और दाऊद अकेले जाके भी उसको मार डाल सकता था। This is the same David when he was a young boy, he took off the head of the Goliath. और यही वही दाऊद था जब वो छोटा था, नौजवान था, तो उसने गोलायत का सिर काट दिया था। It's so easy आसान था उसके to लिए do this, ये करने के लिए, taking off the head. उसका सिर काट देना। But David had a different heart. पर दाऊद का हृदय अलग था, He is thinking in a different way. एक अलग तरीके से वो सोचता है, Spiritual mind. एक आत्मिक मन। In my thinking अगर मेरा सोच is filled with the hurt or injury, और कुछ दर्द से या फिर कुछ जख्म से भरा हुआ है, it's going to be deadly. तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है। David is filled with a hurt. दाऊद दर्द से भरा हुआ है His own family member is coming after him. और उसके खुद के परिवार का एक व्यक्ति है जो उसके विरोध में आ रहा है। As I said previously, he lost the love of his favorite son. He lost the kingdom. और जैसे मैंने पहले कहा कि उसने अपने खास बेटे का प्रेम खो दिया, अपना राज खो दिया। But अब David is seeing something different. दाऊद कुछ अलग बोलता है His mighty men may be so amazed. और शायद उसके जो शूरवीर योद्धा है वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। Verse 10. वचन 10, What have to do with you, sons of Zeruiah? सरूया के बेटों, मुझे तुमसे क्या काम? Let him curse. उसे Because the Lord has said to him, curse David. उसे कोसने दो क्या, क्योंकि परमेश्वर ने ही उसे कहा है कि दाऊद को शाप दे। Who then shall say, why have you done so? तो उससे कौन पूछ सकता है कि तू ऐसा क्यों किया? Sure, it hurts me. हाँ, मुझे दर्द हो रहा है It's really painful. और मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। Maybe God told him, शायद परमेश्वर ने ही उसे कहा है, curse David. दाऊद को जाके श्राप दो। Maybe it's good for me शायद ये मेरे लिए अच्छा है to be humble and broken कि मैं नम्र हो जाऊं और टूट जाऊं before God. परमेश्वर के सामने। Because I think this is an amazing expression of the new heart in David's life. और दाऊद के जीवन में एक अद्भुत चित्रण है एक नया हृदय का, He's thinking in a totally different level. और अलग ही स्तर पे वो सोच रहा है। He's not thinking with the hurt.
और वो उस दुख के साथ, दर्द के साथ नहीं सोचता है, where we have an old heart, जहाँ पर हमारा पुराना हृदय है। where we can think in this way. एक तरीके से हम इस तरह से सोच I सकते can हैं, take the Bible. I can take the Bible और मैं बाइबल को ले सकता हूँ and then attack. और फिर दोष लगा सकता That is हूँ, in the old heart. और ये पुराना हृदय में But है। then God has given a new heart, लेकिन परमेश्वर ने मुझे नया हृदय दिया है, where this word became alive. जब ये वचन एक जीवन बन जाता है, From that heart comes the love. और उस हृदय के साथ, उसके द्वारा वो प्रेम आता है। The love comes from this word, from this heart. तो इस हृदय से वो प्रेम बाहर निकलता I है। think this is what like we love this Bible. इसीलिए हम इस बाइबल से प्रेम करते We हैं read this word. और इस वचन को हम पढ़ते We हैं। look on one page and then we go to another book and then another book and one chapter. We like glean the Bible. और एक तरीके से एक पन्नों से दूसरे पन्नों तक हम जाते हैं और इस बाइबल से हम जैसे बटोरते हैं। David says, दाऊद ये कहता है, God maybe commanded him to curse me. शायद परमेश्वर ने ही उसे आज्ञा दी है कि मुझे शाप दो, Let him live. उसे जीने दो। I just think about that Jesus on the cross. सोचिए यीशु मसीह के बारे में, जब वो क्रूस पर था, Father, forgive them. पिता इन्हें माफ कर दो, This is the new heart. और ये नया हृदय है। And this mighty man honored David. और इन शूरवीर योद्धा ने दाऊद का जैसे आदर किया। Maybe that the man who was cursing Shimei also amazed why this man not doing anything. और शायद शिमी भी आश्चर्यचकित हो रहा था कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। He may be astonished at this expression of grace or mercy. और ये अनुग्रह और दया का जो चित्रण देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया होगा। This is what God, और ये परमेश्वर ही है, His heart, उसका हृदय, and He has given this heart in our hearts, और in उसने our lives. यही हृदय हमारे जीवन में दिया है। That's what Jesus said. इसलिए यीशु कहते हैं, New commandment. एक नई आज्ञा, It's so easy I can lose it और इतना आसानी से मैं इसे खो सकता हूँ, because I think with in hurt. क्योंकि मैं उस दर्द के साथ सोचता हूँ। God says, और परमेश्वर कहता है, think in the new heart उस नए हृदय में सोचो where there is love. जहाँ पर प्रेम है। As a pastor, like somewhere I imagine, like I think about people, और एक पास्टर हूँ तो मैं लोगों के बारे में सोचता हूँ, and it's very easy we can think about their faults और कई बार उनका जो गिरना है उनके बारे में सोच लेते हैं हम, or judging the motives. और शायद उनके जो तरीके हैं उनका न्याय करना, Why they're doing it. क्यों कर रहे हैं ये, Well, I can think about that, और मैं उन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, and then I can get hurt myself. और मैं अपने आप को जैसे दर्द पहुँचाता हूँ। God says, परमेश्वर ये कहता है, think in a new level, एक दूसरे स्तर पर जाके सोचो, new heart. नए हृदय से। David is like just leaving it to God about Shimei. और परमेश्वर जैसे शिमी के दाऊद के विषय में परमेश्वर के ऊपर वो छोड़ देता है शिमी को, Just leaving it to God. परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना। I don't know about why his motives. और मुझे नहीं जानना है कि उसका प्रेरणा क्या है। Let God judge it. परमेश्वर उसका न्याय करेगा। But I pray God bless him. लेकिन मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर उसे आशीषित करो। God, maybe this incident happened to make me humble and broken before God. शायद ये घटना इसीलिए घटी है कि मुझे नम्र कर दे, मुझे परमेश्वर के सामने टूटा हुआ बना दे। I need this doctrine तो मुझे इस सिद्धांत की ज़रूरत है, where I cherish in the new heart, जहाँ पर मैं इस नए हृदय को आनंद लेता हूँ, where the love is coming out. जहाँ पर प्रेम निकल के आता है। It's not going to condemn, वो दोष नहीं लगाने वाला है, like Jesus said to that woman, जैसे यीशु ने उस स्त्री से कहा you're free. कि तुम स्वतंत्र हो गई हो, You're free. I don't care about what you have done. और मैं ध्यान नहीं देता तुमने क्या किया है, You're free. आप मुक्त हो। I know you're इस सुबह में आपका स्वागत है I would like to welcome you this morning. और हम आज इस सुबह में वचन पढ़ेंगे जो मैं बांटना चाहूँगा आपसे। And this morning I would like to read some words and which I want to
leave it before you, जहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं क्षमा के बारे में। where we will be studying about forgiveness. बहुत खूबसूरत है क्षमा के बारे में अध्ययन करना, And it's beautiful thing to meditate on the forgiveness. क्योंकि क्षमा के बारे में अगर हमको और भी समझना है तो हमको परमेश्वर को समझना होगा। If I want to know about forgiveness, then I have to know about God. ना उसके क्रूस को समझना पड़ेगा। I have to understand about the cross. हमें उसके पुत्र की उस प्रेम को समझना पड़ेगा। We have to understand the love which His Son has did. और उस जगह पे हम जाके समझ पाते हैं कि क्षमा क्या है। And on that place, when we go there, and we can able to understand that what is forgiveness. और शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। Before we begin, I would like to pray. पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं Father God, we thank you कि हम आपके पास आ सकते हैं, so that we can come to you. क्योंकि आपका अनुग्रह हमें वो क्षमता, हमें वो दृढ़ता देता है, And your grace gives us that capacity and boldness so that we can come to you. और हमें मदद करता है कि हम अपने बातों को आपके पास रख सकें। It also helps us so that we can keep our thinkings before you. और ये मदद करता है कि हमारे संबंधों में भी वो पुनर्स्थापित करता है हमें, It also helps us to restore the relationship. और हमें मदद करता है कि दूसरों के साथ भी आगे बढ़ने में। It helps us so that we can go ahead with one another. धन्यवाद करते हैं, We want to thank you. इस वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। We give this word into your hand. मदद करना प्रभु जी, Help us, Lord. और हम आपके उपस्थिति में चलना चाहते हैं प्रभु We जी, would like to walk in your presence आपके अनुग्रह के साथ, by your grace. धन्यवाद के साथ। We want to thank you. यीशु मसीह के नाम से आमेन। In Jesus' name we pray, amen. और बहुत अद्भुत एक पंक्ति है And beautiful words which I would Ja- like to read. जहाँ पे यिर्मयाह का 31-34 का बी पार्ट बोलता है, Where Jeremiah chapter 31 verse 34 talks about, the B part talks about that. और उसमें बोलता है कि क्योंकि मैं उनके अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। The Lord says, know the Lord, for they shall know me, for I will forgive their iniquity and their sin I will remember no more. ना परमेश्वर की क्षमा ऐसी है, And God's forgiveness is like this. वो अधर्म को क्षमा भी करेगा It will forgive our iniquity और उसके पाप को फिर से याद भी नहीं रखता है। and their sins He will not remember. और एक पंक्ति पढ़ना चाहूंगा, I would like to read one more verse. यिर्मयाह का 50 वचन 20, And Jeremiah chapter 50 verse 20. जहाँ पे बोलता है, यहोवा की यह वाणी है कि उन दिनों में इज़राइल का अधर्म ढूंढने पर भी न मिलेगा। In those days and in that time, says the Lord, the iniquity of Israel shall be sought, but there shall be none. और बोलता है कि ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा और यहूदा का पाप खोजने पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिन्हें मैं बचाऊं उनके पाप भी क्षमा कर दूंगा। And the sins of Judah, but they shall not be found, for I will pardon those whom I preserve. जहाँ पे परमेश्वर इज़राइल और यहूदा के पाप के बारे में बात करता है, Where God is talking about the sin of Israelites and the Judah. बोलता है उनके अधर्म ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। It is written like that, if anyone wants to find out their sins, still they will not able to find it. बोलता है क्योंकि मैं जिन्हें बचाऊंगा उनके पाप भी क्षमा करूंगा। And whom I will pardon, I will also preserve them. और इब्रानियों का 8:12 बोलता है, Hebrews 8:12 says, बोलता है क्योंकि मैं अधर्म के विषय में दयावंत हुआ और उनके पापों को फिर से स्मरण न करूंगा। For I will be merciful to their unrighteousness and their sins and their lawless deeds I will remember no more. हाँ, उसकी दया वैसी है And His mercy is like that, जो क्रूस के साथ हम देख पाते हैं which we see through the cross. कि हमारे पापों को वो याद भी नहीं रखेगा, He will not remember our sins. जैसे उसने इज़राइल और यहूदा के बारे में कहा। The way He spoke about Israelites and the Judah.
ना जहाँ पे हम देख पाते हैं कि परमेश्वर की क्षमा कैसी है, and where we can clearly see how God's forgiveness is. ना परमेश्वर की क्षमा हम क्रूस के द्वारा समझ पाते हैं। And we can understand the forgiveness of God through cross. ना कई बार हमारे स्वभाव में वो क्षमा, कई बार क्षमा करने का स्वभाव कई बार क्या बोलते हैं नहीं कर पाते कई बार And क्षमा। in our natural conditions, we are not the people who forgives easily. यदि हम कर भी देते हैं तो कई बार उसके दर्द, उसके पीछे के कुछ हिस्से वैसे ही हमारे भीतरी हिस्सों में रह जाते हैं। If I forgive someone also, but still I will have that grudges in my heart. ना कई बार ये मुखौटा ना रहता है, लेकिन हम पीछे कई बार क्षमा कर देते हैं, लेकिन कई बार हम मुखौटा पहने हुए रहते हैं। And I can forgive someone, still I can have that hypocrisy. ना कई बार ये चीज हम देख सकते हैं मतलब संबंधों के बीच में। And we can see these things in the relationships. ना ये एक उदाहरण देना चाहूँगा जो पास्टर काल ने दिया था। I would like to give an example what Pastor Carl gave. ना एक पति पत्नी का एक संबंध में क्या है झगड़ा हुआ था। And there were a couples who fought between each other. ना जहाँ पे एक छोटा सा कारण था उनके झगड़े का। And there is a small reason was behind that fault. जहाँ पे एक अचार का ढक्कन बंद नहीं किया गया। Where they could not put the top of the jar, ना जो pickle jar. बॉटल का ढक्कन था वो बंद नहीं करने की वजह से क्या है दोनों में झगड़ा हो गया। They fought because someone has forgot to put off the tap on the pickle jar. ना एक ही घर में रहते हुए वो क्या है बहुत सालों तक बात नहीं किए। By staying in the one house, they could not talk for years. ना एक ही घर में है लेकिन दिल से दूर है। They are in the one house, but still far in their hearts. ना मतलब पास में तो रह रहे लेकिन हार्ट में ना कनेक्शन नहीं है। They are staying together, but there is no relationship in their hearts. ना वैसे हम हो सकते हैं भाई। We can be like that. ना हमारा एक जीवन है जो मसीह में है। And we have a life which is in Christ, जहाँ पे परमेश्वर की क्षमा को देख पाते हैं। where we can see the forgiveness. लेकिन अधम की क्षमा जहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मैं उनके पापों को स्मरण भी नहीं करूँगा। Where God says, I will remember their sins no more. राइट, जो हमारे पापों को क्या करता है पूरब से पश्चिम तक क्या है उतनी दूर कर देता है कि वो वापस मिल भी नहीं सकते। He has taken our sins as far as east is from the west. ना इवन इफिसियों का अध्याय में ना मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि हम आज लॉकडाउन में है कई बार। I would like to say, because we are in the lockdown, ना जहाँ पे हम एक साथ रहते हैं where we are staying together, और संबंधों में बढ़ रहे हैं we are growing in the और relationship, इवन हम कलीसिया के हर एक माध्यम से जुड़ना चाहते हैं and we want to get attached to with different kinds of modes, ना, क्योंकि अब आज हम फेस टू फेस ना मिल नहीं पाते कई बार। because we are not able to see one another face to face. बट थैंक यू, धन्यवाद कि आज ना ट्रांसलेशन है, ना रॉबिन है, ना नितिन है, पास्टर अजय है, तो हम यहाँ पे मिल पा रहे हैं। Thank God that we have everybody in this room at this point of time. लेकिन और भी परमेश्वर का धन्यवाद होगा जब हम सभी लोग एक साथ मिल सकते हैं। And it will be a great time when we all will meet together. ना प्रार्थना में रखिएगा Keep that in prayer. और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस संबंधों में बने रहें। It is very important that so that we can be in this relationship. ना, क्योंकि परमेश्वर जिम्मेदारी लेता है और परमेश्वर उसको पूरा भी करता है। God takes the responsibility and also He fulfills that वो responsibility. ऐसा पति है जो हमारी अगुवाई करना जानता है। He is our husband in such a way that He knows how to lead us. राइट, इफिसियों का 5वां अध्याय 25 से 27 बोलता है। And Ephesians chapter 5 verse 25 to 27 says about that. एक मिनट, हाँ, बोलता है हे पतियों अपने पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। And husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave Himself for her, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, that He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिससे न कलंक न झुर्री न कोई और ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो, that He might present her to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing,
but that he should be holy and without blemish. राइट, और वो जिम्मेदार बनता है And he is the one who is responsible. और एक उदाहरण दे रहा है पौलुस उस जगह पे And Paul is giving an example in that place जहाँ पे कलीसिया से परमेश्वर ने यीशु मसीह ने प्रेम किया where God, Jesus loved the church ना, जहाँ पे वो हमारा दूल्हा है and where he is our bridegroom और हम कलीसिया उसकी दुल्हन है and we are his bride. है ना, कितना खूबसूरत है And how beautiful is ना, this? जहाँ पे हम उसको हम उसकी दुल्हन है। We are his bride. क्या एक्साइटिंग नहीं है Isn't it exciting? कि हम उसके साथ इस सफर में साथ में है We are in this walk with him. और वो मेरा पति है जो मेरी अगुवाई कर रहा है। And he is our bridegroom who is taking responsibility. वाह, एक दिन हम उसके साथ बादलों पे होंगे And one day we are going to be with him in the clouds. और हम उससे मिलेंगे। And we are going to meet him. राइट, हमारा दूल्हा आने वाला है And our bridegroom is going to और come. हमें लेकर जाएगा And he is going to take us. ना। कितना खूबसूरत ये वाक्य है। And how beautiful is this sentence. और लेकिन वो ये कहता है कि हे पतियों अपने पत्नी से प्रेम करो And he is writing that husbands love your wives. ना, जैसा वो जिम्मेदारी लेता है, The way he is taking the जैसा वो responsibility. क्षमा करता है, The way he forgives. जैसा वो प्रेम करता The है, way he loves. वैसा हम भी करें He wants us also to do ना। the हर एक same पति way. के लिए वो क्या है, एक आज्ञा के समान उसका ना एक आज्ञा है And for every husband it is like a commandment which Christ has given ना। us. बोलता है तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। And if you love me, obey my commandments. आज्ञा मानना मतलब ये नहीं कि हम उसको क्या है डर से आज्ञा माने, बल्कि उसका आदर कर रहे हैं We are obeying not because of we are fearful of him, but we honor him. ना। परमेश्वर के बारे में हम जब सोचते हैं When we think about God, ना, उसको समझ नहीं पाते कई बार we never understand him. ना, लेकिन यीशु मसीह का क्रूस हमें उस प्रेम को बयां करता है, उसको समझने में मदद करता है But the cross of Christ reveals us and helps us to understand God. ना। यूहन्ना का अध्याय में बोलता है कि पिता को किसी ने नहीं देखा लेकिन उसके पुत्र ने उसका वर्णन किया। And book of John talks about like nobody knew God, but his son expressed him, showed him who God ना, is. जहाँ पे हम देख पाते हैं Where we can see today कि वो क्रूस, that cross, वो कलवरी, जहाँ पे हम उसके प्रेम, उसकी दया, उसकी करुणा को और उसके अनुग्रह को देख पाते where हैं we can see his love, grace and mercy from that cross. और वहाँ पे उसकी क्षमा भी हमें मिलती है And we also receive forgiveness. और वही क्षमा को हम समझ पाते हैं And that forgiveness we are able to understand. और हम क्यों ना इस संबंधों में वैसे जिए And why not we in this relationship should live like ना। that? एक अचार का बॉटल, राइट And one jar of pickle, ना, जो झगड़े का कारण बना, and which became a reason to fight. छोटा सा था It was very small, लेकिन वो बहुत सालों तक चला। but it took many years. क्या हम वैसा जी सकते हैं Can we live in that way? ना? यीशु मसीह वैसा नहीं चाहता। God, Jesus doesn't want us to be like that. तो क्षमा करना सीखो And learn to forgive. ना, और क्षमा देना सीखो And learn to forgive. ना, और क्षमा मांगना सीखो And learn to ask forgiveness. ना। क्षमा तभी दे सकते हैं We can forgive in that moment जब मैं परमेश्वर के प्रेम से भरता हूँ when I am being filled with the love of God. और क्षमा तभी मांग सकते हैं When I can ask forgiveness जब मैं परमेश्वर के प्रेम को जानता हूँ when I know the love of God. कि वो मुझे क्षमा करने वाला परमेश्वर है। And He is the one who is a forgiving God. क्या मैं क्षमा किया जा सकता हूँ? Am I going to be forgiven? हाँ, उसका क्रूस मुझे बताता है। Yes, I am, because His cross reveals that. क्या मैं प्रेम किया जा सकता हूँ? Am I going to be loved? हाँ, उसका पुत्र मुझे बताता है। Yes, His Son talks about that. क्या मैं पवित्रता में जी सकता हूँ? Can I live in the purity? हाँ, उसका पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो हमें बताता है। Yes, His Holy Spirit which is inside us, it shows us, it tells us. क्रॉस, There is a Cross. cross, पुत्र, Son, पवित्र आत्मा, Holy Spirit. तीन चीजें हमारे जीवन से जुड़ी है And three things are attached with our lives. जो हम इस दुनिया में लेकर चल रहे हैं। When we are walking in this world, we are taking those three things. क्रूस मेरे लिए है Cross is for my life, और पुत्र ना दूसरों के लिए वो प्रेम प्रकट करता है and Son is for others whom I can reflect His love. और पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है और हमें चलने में मदद करता And है Holy Spirit gives strength and helps us to walk. ना। कई बार ये परमेश्वर के विरोध में जाना वही है कि हम कई बार क्षमा नहीं करना
ये है कि हम क्षमा मांग नहीं पाते। And sometimes we are going against God because we are not able to forgive or not able to ask forgiveness. ना जहाँ पे हम परमेश्वर के पास नहीं जाते Where we are unable to go to God. कि परमेश्वर मुझे सिखाओ क्षमा करना, God helps us so that I can forgive. कि परमेश्वर मुझे वो प्रेम दो जिससे मैं वो क्षमा कर पाऊँ। And Lord, help me with that love where I can able to forgive others. आप और हम जब परमेश्वर से प्रेम से भरे जाते हैं, You and me, when we are being filled with the love of God, क्षमा करना सीखते हैं। and we are able to learn, now we are learning how to love. एक ऐसा लगता है कि साधारण जीवन है, And it seems like it's a very natural life, लेकिन वो बहुत सामर्थ्य है but it is a very powerful life. ना। इस हफ्ते में पास्टर शालार ने बोला, And in this week, Pastor Shalar was saying, हम बोले कि रहस्य में जीना and living in that mystery. ना, एक मसीह जीवन एक रहस्य है And Christian life is like living in the mystery. और उस रहस्य में जीना सीखना है। And love to live in that mystery. शायद कितना खूबसूरत है बाय द वे। How beautiful is that? प्रेम करना रहस्य है, And loving is a mystery. क्षमा करना रहस्य है। Forgiveness is a mystery. वो क्रूस एक हमारे लिए इस कलीसिया एक मसीह का भेद ना। पौलुस बोलता है मेरे पे वो भेद क्या किया, मुझ पे प्रकट किया गया, वो एक रहस्य है। And Paul is talking about the mystery, and it says this mystery has been revealed to me, जिसमें हम देख पाते हैं where we can see now, परमेश्वर का प्रेम, उसकी दया को, जहाँ पे हम एक दूसरे को दे पाते हैं। where the love of God and the mercy of God comes together. लेकिन वो वहाँ पे डील होनी जरूरी है, And it needs to be dealt in that place, जहाँ पे क्रॉस है, where the cross is. मुझे क्रूस के पास जाना जरूरी I है have to go to cross. ना। वो बोलता है ना परमेश्वर की मत्ती के अध्याय में कि तू अपनी बेट यहाँ पे छोड़ और पहले जाके अपने भाई से मेल मिलाप करा। In the book of Matthew, it talks about like leave your gift at this place and go and have forgiveness with your brother. ना जहाँ पे वो संबंध में चाहता है, मतलब उसका मतलब यही है कि वो संबंधों में एक लाइफ जीवन चाहता है। And he wants that relationship, that he wants the life in that relationship. जो प्रेम के साथ, जो क्षमा के साथ और जो अनुग्रह के साथ जुड़ा है, And which comes with the love and the forgiveness and the mercy. ना जहाँ पे हमें वो उस जीवन में देखना चाहता है Where he wants to see us in that life. ना। कई बार ये ना हम उस समस्याओं से डील नहीं करने की वजह से और दूसरे समस्या में पड़ सकते हैं। Sometimes we don't overcome on one problem, so that's why we get into some other problems and issues. ना इसलिए क्या है, उस समस्या से पहले ही क्या है, दूसरे समस्या में गिरने से पहले इसी समस्या में उसको डील कर दे। Before we fall into some other problem, it's better to resolve with this first current problem. क्योंकि वो अंत में क्या है, हमें नहीं तो हानि तक पहुंचा देगा, Otherwise, we will end up in the mess, या संबंधों में हानि। and there will be mess in the relationships. अगर ये संबंध के बारे में नहीं होता And if it is not about relationship, तो परमेश्वर सिर्फ आदम को ही बनाता। then God would have only created Adam, तो परमेश्वर बहुत सारी चीजें नहीं बनाता, and God wouldn't have created other things, इवन वो उन चीजों को वो ज्यादा महत्व भी नहीं देता। and He will not give importance to others. लेकिन बोलता है बाइबल में कि मनुष्य क्या है, तू उसकी सुधि लेता है। But Bible says, "What is man that you are mindful of him?" वो हमारी चिंता करता है, He thinks about us, वो हमारे लिए सोचता है and He thinks about us and cares about us. ना। जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ जुड़ के उसके साथ चल सकते हैं, Where we can be knit together with one another and we can walk with Him. वो उसका आना ही था कि हमें वो संबंध में वापस पुनर्स्थापित करे। And He came because so that He can restore the relationship with us. मसीह जीवन में हम जब जीते हैं, When we live in the in a Christian life, जहाँ पे हमको क्या है, उस क्रूस को देखकर चलना है where we have to walk by looking at the cross. ना। भजन संहिता का 103:3 बोलता है, And Psalm chapter 103 verse 3 says, क्योंकि हम जितना हम संभालने की कोशिश करें, the more I try to control or handle the situation, वो उतना ही बिगड़ सकता है and the situation can be worst. ना। यहाँ पे एक पंक्ति है जो भजन संहिता 103 एक तीसरी पंक्ति है, And Psalm chapter 103 verse 3 says, वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता है Who- और तेरे सब रोगों को चंगा करता है।
who forgives all your iniquities, who heals all your diseases. वह तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचाता है, तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, Who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies. राइट। कितना खूबसूरत है। How beautiful is जो this? प्राणों को हमें नष्ट होने से बचाता है, Who redeems your life from the destruction, जो हमारे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, who crowns you with the loving kindness and tender mercies. क्योंकि हमारे वो अधर्म को और रोग को चंगा करना चाहता है। And he knows how to give healing, bring healings in our diseases. जहाँ पे हम जा सकते हैं Where we can go, ना, उसका अनुग्रह वैसा है। and his grace is like हमें that. आवश्यकता के समय मिलता है It comes when we are in the time of need. ना, जहाँ पे वो अनुग्रह हमारे जीवन में वो काम करता है जहाँ पे हम नष्ट होने से बच जाते हैं। And grace does that work when we are about to get destroyed. It makes us to stand. इसका मतलब हमारे संबंधों में हम ना उन्नति पा सकते हैं It means that we can grow in that relationship with him, ना, जहाँ पे हम बढ़ सकते हैं where we can grow. ना, जहाँ पे हम देखते हैं कई बार ना, बाइबल में बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं We can see a lot of incidents in the Bible जहाँ पे परमेश्वर ने क्षमा की, where God जहाँ forgiven. पे परमेश्वर के जो दास थे वो भी कई बार उस तकलीफ से, उस अधर्म से गए और उन्होंने भी क्षमा पाई। And where we can see the disciples of God who are gone through the troubles but still got a forgiveness from God. ना, जहाँ पे हम देख पाते हैं We can see in that. ना, दाऊद का उदाहरण है Example we can take of David, ना, जहाँ पे उसने पाप किया, where he sinned, लेकिन वो वहाँ पे उसने क्या किया, नातान को परमेश्वर ने भेजा। but God sent Nathan. ना, एक चीज मैं सोच रहा था उसके बारे में I was thinking about that. ना, वहाँ पे जब नातान उसके पास पहुँचा When Nathan reached to David, ना, दूसरा शमूएल का 12-13 में है पंक्ति, and 2 Samuel chapter 12 verse 13 says, बोलता है मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, and David confesses that I have sinned against the Lord. और नातान ने बोला तेरे पाप दूर हो गए। And Nathan in return says, your sins has been forgiven. ना, तुरंत परमेश्वर ने क्षमा कर दिया, On the spot God has forgiven. लेकिन वो 1 साल तक उसने उस जगह पे क्या है, 1 साल तक वो परमेश्वर के पास नहीं गया। For 1 year David could not go to God. ना, सोच सकते हैं कि वहाँ पे मैं ये सोच रहा था कि वहाँ पे तुरंत नातान ने कहा कि तेरे पाप दूर हो गए। And Nathan in return said to David, the Lord has put away your sins. ना, जहाँ पे हम देख पाते हैं Where we can see. ऑफकोर्स उस पाप का परिणाम दाऊद को भुगतना पड़ा, We know that he has to go through the consequences of the sin. लेकिन परमेश्वर की क्षमा उसके लिए तुरंत प्राप्त हुई। But the forgiveness of God was available for David. कई बार हम उस संबंधों में हानि पाते हैं, And sometimes we can be bitter in that relationship. लेकिन परमेश्वर की क्षमा हमें फिर से उसको पुनर्स्थापित करने में मदद करती है। And God's forgiveness helps us so that we can get restored in that relationship. ना, यूसुफ का जीवन हम देखते हैं When we look at the life of Joseph, ना, यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा किया Joseph forgiven his brothers, ना, जहाँ पे वो उस समय उसके पास आया जब उनकी जरूरत थी and he came at that time when they were in need. ना, जहाँ पे यूसुफ के सामने उसके भाई खड़े हैं, When his brothers were standing in front of him. वहाँ पे मैं एक पंक्ति देखना चाहूँगा। I would like to read one verse in that. उत्पत्ति का 50 Genesis chapter 50. उत्पत्ति का 50 बोलता है कि 21 में, Verse 21 says, इसलिए अब मत डरो कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। Now therefore do not be afraid, I will provide for you and your little ones. ना, उसके पहले भी बोलता है कि 19 में, And verse 19 also says, ओके, उसके पहले 18 में भी है, verse 18, बहुत सारी है, ओके ठीक है। उसके पहले 17 में हम पढ़ते हैं, verse 17. तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप की क्षमा कर, और हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर।
Thus you shall say to Joseph, I beg you, please forgive and the trespasses of your brothers and their sin, for they did evil to you. Now please forgive the trespasses of the servants of the God of your father. And Joseph wept when they spoke to him. ना, और यूसुफ रो पड़ा, वहाँ पे बोलता है। And it verse says Joseph wept when they spoke to लेकिन him. वहाँ पे क्या बोलता है आगे? What this verse says? बताए 19 में बोलता है, यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? Verse 19 says, Joseph said to them, do not be afraid, for am I in the place of God? नहीं, मैं उस परमेश्वर की जगह पर नहीं हूँ। No, I am not in the place of God. परमेश्वर मेरे बारे में भलाई सोचता है, And when God thinks about good about my life, और परमेश्वर सभी के बारे में, जो परमेश्वर के लोग हैं उसके बारे में भी भलाई सोचता है। and whoever belongs to God, God thinks the same way, और उसने उनको क्षमा कर दिया, and He forgiven them. और वो परमेश्वर की जगह पर नहीं था, He was not in the place of God, लेकिन वो परमेश्वर के उस स्वभाव और चरित्र को जानता था, but he knew the nature and character of God, और उसके द्वारा उसने क्षमा की। and by that way he forgave them. कैसे परमेश्वर ने उसको उस गड्ढे से उठा के मिस्र में प्रधान बना दिया। How God brought Joseph out of that pit and made him a prince, उसने उन चीजों को देखा and he saw those things, और परमेश्वर की भलाई को देखा, and he saw the goodness of God. इसलिए बोला कि परमेश्वर ने मुझ पर इतनी भलाई इसलिए की ताकि बहुतों के प्राण बचाए जा सके। And that's why it says that God has been so good to me that others can be comforted by my goodness. ना, जैसा आज के दिन प्रकट है का The way today it happened, ना, इसलिए वो क्षमा परमेश्वर की ओर से है, and that forgiveness comes from God. और आज भी हमारे संबंधों में ये चीजें हम कई बार इससे गुजरते हैं And today also we can go through these kinds of things. ना, लेकिन यहोवा ने मूसा पे भी अपना नाम प्रकट किया वैसे And God also showed His name to Moses, ना, जहाँ पे वो स्वयं प्रभु परमेश्वर है and where He Himself is the Lord, ना, उसका चरित्र बताता है and He talks about His nature, ना, जो दया करने वाला अनुग्रहकारी परमेश्वर है, and the one who is merciful and gracious, साथ ही वो क्षमा करने वाला and He परमेश्वर है, also the God of forgive, जहाँ पे मूसा के साथ उसने बात की where He spoke with Moses, ना, जो दर्शाता है कि उसके लोगों के साथ उसका संबंध कैसा है and he's representing the relationship what he had with the people. ना, जहाँ पे हम देख पाते निर्गमन के अध्याय 32 में है, लेकिन वर्ष नहीं पढ़ूंगा, लेकिन वहाँ पे है And 32 के 34 Exodus chapter 32 it talks about ना, जहाँ पे वो हमारे साथ वो उस संबंध में चलता है। where he is walking in that relationship with इवन us. पहला पत्रस में बोलता है वो अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, And even Peter talks about like in his presence he will never be late. कि वो धीरज धरता है कि बहुतों के प्राण को बचाया जा सके And he is long suffering, he is patient so that everybody should get saved. ना, जहाँ पे वो उद्धार की बात कर रहा है Where he talks about salvation, ना, जहाँ पे हम देख पाते हैं and where we can see that, कि यीशु मसीह का वो बहाया हुआ लहू and we can see the blood which is shed. परमेश्वर के ना, परमेश्वर उस क्या बोलता है, उस न्याय को भी प्रकट करता है, And God also represents the judgment, जो विश्वास करते हैं, the one who believes. जहाँ पे वो हमें वो अनुग्रह के साथ दया के साथ हमें क्षमा देता है And where he gives forgiveness with grace and mercy. ना, क्योंकि वो न्याय करता है, किसी का पक्षपात नहीं करता And he judges but he is never partial. ना, इसलिए किसी को दंड इसलिए नहीं मिलेगा कि उसने वो किसी पे क्रोधित हुआ है। Anyone in this world will not receive that condemnation just because God has been judgment. He has been very judgeable to others. क्योंकि वो बोलता है मैं दंड देने नहीं बल्कि उद्धार करने आया हूँ। He says, I have not come into this world to condemn but to save. वो उद्धार करने आया हमारा, He came to save us. हमारा क्षमा देने आया He came to forgive us. ना, जहाँ पे हम उसकी उस क्षमा को ग्रहण कर सकते हैं, Where we can receive that forgiveness. और जो अविश्वास में है, And the one who are unbelievers, जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते, the one who doesn't accept Jesus, वो दंड के योग्य बना दिए जाएंगे and they are already condemned, it says. ना, लेकिन जो विश्वास करना चाहते हैं, But the one who wants to believe, जो यीशु मसीह जो क्रूस पे मरा है और जो
जीवित हुआ है, and the one who died on the cross and also got resurrected, जो सच्चा सुसमाचार है, and the one which is a true gospel, जो जीवित परमेश्वर जो क्षमा देना जानता है। and the one who is a living God who knows how to forgive. यदि आप सुन रहे हैं And if you are listening this तो time, आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि यीशु पे विश्वास करके कि वो क्षमा करने वाला and you परमेश्वर है। can say this small thing that by believing in Christ that He is the one who is forgiving us, वो आपको क्षमा करेगा, आपके संबंधों को पुनर्स्थापित करेगा and He is the one who is going to forgive you and also restore your fellowship and relationship with और वो Him, मदद करेगा and also help you आगे बढ़ने में, so that you can go ahead. क्योंकि हमें क्षमा की जरूरत है। Because we are a people who need क्योंकि forgiveness, जो पाप में है उनको क्षमा की जरूरत है। and the one who are sinners they need forgiveness. जहाँ पे पहला यूहन्ना का 1:9 बोलता है, And where 1 John 1:9 says, यदि कोई अपने पापों को मान ले if anyone who confesses their sins वो क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। and is faithful and just to forgive their sins, ना जो विश्वास योग्य और धर्मी है, and who is also faithful and just, जो हमारे संबंधों को पुनर्स्थापित करता है, and one who restores our relationship with Him, ना जहाँ पे उसके पास वो क्षमा है, and where He has a forgiveness with Him. ना जहाँ पे हम देखेंगे कि अगर बाइबल में बहुत सारे उदाहरण में है And we can see in the Bible there are a lot of ना, एक examples. पापी स्त्री जब उसके पास आती है, When a sinner, a woman who was in sin came to Jesus Christ, जहाँ पे शिमोन के घर में है he was in the house of Simon, ना, जहाँ पे वो उसके आंसुओं से उसके पाँव धोती है, that women start wiping, washing his feet with the tears. ना परमेश्वर उसको क्षमा करता है क्योंकि उस अनुग्रह को समझ पाती है And Jesus forgives her and she is now able to understand the grace. ना, जहाँ पे वो शिमोन नहीं समझ पाता But Simon is not able to understand लेकिन वो that. समझ पाती है। But she can able to अपने understand. इतर की बोतल से उसके पाँव को धोती है, She anoints his feet with the fragrance ना, जहाँ पे वो क्षमा प्राप्त करती है and she receives forgiveness. ना, बोलती है वहाँ पे यीशु मसीह ने क्या बोला, जो थोड़े में क्या है थोड़े में क्षमा, क्या बोलता है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। And Jesus says in return to her, whose sins were so much, she loves much. ना, जहाँ पे वो उदाहरण देकर बोलता है And he gives an example. कि जिसके 50 कर्ज था, किसी का 500, And he gave an example of somebody has a debt of 550 और दोनों के कर्ज माफ हुए, and both the debts has been cleared. कौन ज्यादा प्रेम करेगा? Who will love him the most? वो जो जिसका ज्यादा माफ हुआ And है। the one whose debt was high, he will love. उसलिए यीशु मसीह कहता है कि इसने बहुत प्रेम किया क्योंकि इसके बहुत से पाप क्षमा हुए। That's why he gave an example of that this woman's sins were many, and that's why she is able to love now. हमारा संबंध व्यक्तिगत हो चाहे ना एक दूसरे के साथ सामूहिक हो, And our relationship can be with one another जहाँ पे हम एक सामूहिक संबंध में हो, or in a general, ना, जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, and where we are walking with one another, जहाँ पे हमें क्षमा की जरूरत है where we need of ना। forgiveness. इसलिए एफिसियों का 4:32 बोलता है, And that's why Ephesians chapter 4 verse 32 says, बोलता है एक दूसरे पर कृपालु और करुणमय हो, and that's why it says, be kind to one another. और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. केवल ये परमेश्वर के द्वारा ही हो सकता है And this is only possible through God. ना, जो क्रूस जहाँ पे उसने उस कलवरी पे काम पूरा किया And the one who finished the work on that Calvary, ना, जहाँ पे हमें क्षमा की जरूरत है वहाँ पे क्षमा मिलेगी where we are in need of forgiveness and we got that ना, forgiveness. जहाँ पे हम उसके साथ उस जैसा हमको वो क्षमा करता है वैसे हम दूसरों को भी क्षमा कर पाते हैं। And the way He forgives us, we can able to forgive others. और पतरस ने एक सवाल पूछा यीशु मसीह से, And Peter asked a question to Jesus Christ. कितनी बार क्षमा करना चाहिए? And he asked, how many times should I forgive my brother? यीशु ने कहा
Jesus said to him, मैं तुमसे नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार से 70 गुना। he said, I will not tell you that you should forgive seven times, but I would say 70 times 7. ना 7 बार से 70 गुना। And it says like 70 times 7. मतलब यीशु मसीह जानता है Jesus knows, हम इस पापी स्वभाव में हैं because we are in this old sin nature. और हर दिन टकराव होने वाले हैं, And every day we are going to get with one another. और वो क्षमा के बारे में वही सिद्धांत बताता है And the forgiveness gives that principle. ना, एक चीज को भूलते हुए बोलते हैं आगे की ओर बढ़ना, जैसे Forgiving those things and moving forward. ना, जहाँ पे हम एक ही तरह से कर सकते हैं And we can do it with only one source. ना, जो है यीशु मसीह को क्रूस And but that is Jesus Christ cross. ना, जो क्रूस हमारे संबंधों के बीच में है, And the cross in the middle of our जो relationship, हमें सिखाता है which teaches us how to forgive. नहीं तो एक छोटा सा अचार का बॉटल Otherwise we can fight on the pickle of jar, ना, जो बड़ा झगड़ा का कारण बना which can become a big fight. ना, लेकिन छोटा सा, It राइट was very small, ना, लेकिन कैसा है, but हमारे how ईगो को हर्ट करे, अहम बोलते हैं उसको, ईगो को it हर्ट can करे hurt our egos. ना, तकलीफ होती है कई बार, It hurts. यस तकलीफ होती है, Yeah, we know it hurts us. लेकिन तकलीफ तब नहीं होगी जब हम क्रूस को लेकर आएंगे। And we will not get hurt if we are bringing cross in the middle of that. बोलता है उस तकलीफ से ज्यादा किसी ने उस दर्द को सहा है, And the problems which you are going through, someone else has already faced those kinds of. वो है यीशु मसीह। And his name is Jesus उस Christ. क्रॉस पे ही नहीं, Not on that cross only, उसके उस 3.5 साल की सेवकाई में, उसके 3.5 साल की सेवकाई में भी but also in his ministry when he was on this earth. उसको इनकार किया गया, And people rejected him. उसको ठुकराया गया, People rejected them. उसके rejected him. मुंह पर थूका गया They spit on him. और उसके कपड़े फाड़े गए, They tore his clothes. उसके चिट्ठी डाली गई ना उसके लिए They took his clothes and put lot on them. ना, कितना ये दर्द से गुजरा होगा वो चीज। What kind of pain he may be going through. लेकिन क्या बोलता है यीशु मसीह, What he says, ये पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। Father, forgive them, they don't know what they do. वो कलवरी है, That is what the Calvary ये is. नहीं जानते, They don't know. वो क्षमा है That is the forgiveness. ना, वहाँ पे हमें क्षमा मिलती है, And we get forgiveness from that place. वहाँ पे हम फिर से पुनर्स्थापित होते हैं And we get restored from that place. और हमारे संबंधों में बढ़ने में मदद मिलती है And it helps us to grow in our relationship with him. और हम चल पाते हैं And we are able to walk now. ना। मुझे क्षमा की जरूरत है I need forgiveness. और मुझे दूसरों को क्षमा करने की जरूरत है, And I also I need to forgive others. और पर मेरे जीवन में परमेश्वर के क्षमा दूसरों के जीवन में देखने की जरूरत है And I have to see the forgiveness what Christ has done in another's life. ना, जहाँ पे यीशु मसीह ने चेलों के पाँव धोए, Where Jesus washed his feet of his disciples. और वहाँ पे उसने ये दिखा दिया And he showed that. क्षमा का मतलब क्या है, What is the meaning of forgiveness? प्रेम का मतलब क्या है। What is the meaning of love? क्षमा तब किया जाएगा Forgiveness can be happen only on that condition. जब मैं यीशु मसीह के प्रेम से भरा जाऊंगा। When I will be filled with the love of Christ. मैं प्रेम से तब भर जाऊंगा I can be filled with that love. मैं जब उस कलवरी के प्रेम को जान पाऊंगा, When I am able to understand the love of that Calvary. और वही जगह है जहाँ पे हम पुनर्स्थापित होते हैं। And that is the place where we get restored. आमीन। Amen. हम प्रार्थना करते हैं। Let's pray. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं Father God, we want to thank you. और ये समय हम आपके हाथों में सौंपते We हैं। give this time into your hand. ये खूबसूरत वचनों को पिता परमेश्वर, These beautiful words जहाँ पे आपकी क्षमा है, where we can see your forgiveness. जहाँ पे आपने हमारे पाप इतने दूर किए जहाँ पे हम वो याद भी नहीं किए जाएंगे, You have taken our sins so far that we cannot remember. ना, जहाँ पे हम आते हैं We come to you. कि हमें सिखाओ प्रभु जी You teach us कि हम क्षमा करना सीखें so that we can learn how to forgive. और क्षमा करके प्रेम करना सीखें। And after forgiving, able to love others. हमारे जीवन से वो झरना बहे And let that fountain should go from our life. जो दूसरों को आपके सुसमाचार को प्रचार कर पाए, Which we can preach the good gospel to others. और यहाँ पे जो सुन रहे हैं And the one who are listening at this वो time. सिर्फ अपने मन में ये कहे, And you can say in your heart. यदि वो ये विश्वास करना चाहता है कि अपने जीवन में
if you want to believe in your life यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, that Jesus Christ is the real God, आप अपने मन में ये कहे कि यीशु मैं आप पे विश्वास करता हूँ, you can say in your heart that Jesus, I believe on you. मेरे पापों को क्षमा करो। Forgive my sins. तू क्षमा करने वाला अनुग्रहकारी परमेश्वर है You are the forgiving who is graceful, और तू सच्चा परमेश्वर है, and you are the real God, तू जीवित है। and you are living God. बस इतना कहना, You can say this, आपको परमेश्वर पूरी तरह से क्षमा कर देगा। and God can forgive you completely. सिर्फ ये कहो, यीशु मैं आप पे विश्वास करता You हूँ। can say this, Jesus, I believe on you. आमीन। Amen. धन्यवाद करते प्रभु जी Father God, we thank you इस समय को देने के लिए, for giving us this time. आपके हाथों में सौंपते हैं। We give it into your hand. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं Father God, we pray. कि हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य को We pray for each member of our church. कि आप प्रोटेक्ट करना प्रभु जी, You protect them. मदद करना You help them हर एक ज़रूरतों के समय में। in the need of their time. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं Father, we pray. विजय कुमार जी के लिए और रश्मि सिस्टर के लिए। Vijay Kumar and for Rashmi sister. प्रभु जी उन्हें भी प्रोटेक्ट करना प्रभु जी, You protect them also. मदद करना प्रभु जी, Help them, Lord. और प्रभु जी उन्हें संभाले रखना प्रभु जी। You protect them, care of them. और महेश अंकल के लिए हम प्रार्थना करते हैं, We also pray for Mahesh uncle. उन्हें भी पूरी तरह से चंगाई देना प्रभु जी, You heal him completely. और संभाले रखना प्रभु जी। You protect him. आप सच्चे और जीवित परमेश्वर हो, You are the living and the true God. आपका सामर्थ्य हाथ हर एक पे है। And your mighty hand is upon everyone. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, We want to thank you. We pray this time. इस कलीसिया की उन्नति आपके हाथों में सौंपते हैं। And the growth of this church belongs to you. धन्यवाद करते हैं We want to thank you. यीशु मसीह के नाम से, In Jesus' name we pray. आमीन। Amen. आमीन। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू हो, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु।